Hello everyone, this is Literature Lamb and welcome back to my channel. I'm here again with another video of language and literature. Today's video will be an MCQs video. Here today I'll be covering some questions from the modern writers and works. I mentioned modern writers and works just because these writers are modern and new to us, because some people who are preparing for literature वो बहुत बार क्या करते हैं, इन वाले राइटर्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं बिकॉज दे थिंक दैट हम मेन राइटर्स को करेंगे. ऑब्वियसली मेन राइटर्स में ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, बट दीज राइटर्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और हमें इनका नॉलेज होना चाहिए. सो today we'll be doing not modern writers. I mentioned it just because some of these are belong to the early to 19th century, but yeah. So शुरू करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से. Let's see the first question. So the first question is, who penned the book Little Man or Life at Plumfield with Joe's Boys? So this is the book Little Man and this is the subtitle, or Life at Plumfield with Joe's Boys. Here we have three things. We will learn three things: the work, writer and publishing year. तो हम जो है इसमें आज हर क्वेश्चन में हम तीन चीज़ ज़रूर पकड़ते हैं, चाहे वो वर्क हो या इनमें से जो भी राइटर होगा राइटर हमें पता चल जाएगा, और हमें पब्लिशिंग ईयर भी पता होना चाहिए. सो लेट्स रीड द क्वेश्चन अगेन. हु पेन द बुक लिटिल मैन और लाइफ एट प्लमफील्ड विद जोस बॉय which was published in 1871. Remember, Little Man was published in 1871. Let's see the options. Louisa May Alcott, E.B. White, Laura Secord, Jane Eyre. So these are the four options. I hope जिनको ये क्वेश्चन पता होगा, जिन्होंने वर्क या इनके बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने सही आंसर चूज़ किया होगा. तो हम देखते हैं अपना राइट आंसर. Little Man. Who wrote Little Man? So here we have the right answer, which is Louisa May Alcott. She had also written Little Women. Little Man के साथ साथ इन्होंने एक और वर्क लिखा है जो कि है Little Women. Remember this thing. Louisa May Alcott is the right answer, and the work is Little Man and the year is 1871, and she had also penned the work Women. Which Little Women? So consider it. Now let's move toward the next question. Let's see the next question. Okay. Which Nobel Prize winning author wrote the 1997 novel Paradise? So here we are getting one thing, that नोबल प्राइज़ विनिंग ऑथर है ये, जिसका एक क्वेश्चन है. नोबल प्राइज़ इन्होंने जीता है और इनकी जो वर्क है वो है पैराडाइज, और वो पब्लिश कब हुई थी? 1997 में. तो कौन सी है? एक तरह ऑप्शन देख लेते हैं सारे हम. वर्जीनिया वुल्फ, डेनियल डिफॉय, रिचर्ड पावर्स, टॉनी मॉरिसन. सो वी हैव हियर फोर ऑप्शंस. ऑल आर इम्पॉर्टेंट. एंड लेट्स सी. तो आप भी अपने वीडियो के साथ साथ आप भी अपने आंसर्स रेडी रखें और टू टेल मी कि आपके कितने इनमें से सही हुए हैं इन द कमेंट सेक्शन. देखते हैं अपना जो राइट आंसर है हमारा. सो द राइट आंसर इज़ टॉनी मॉरिसन. द राइट आंसर इज़ टॉनी मॉरिसन. द नॉवल वॉज द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रिलॉजी. एक्चुअली जो हमारी ये वर्क है पैराडाइज, ये ट्रिलॉजी से बिलोंग करती है, जो कि किसने लिखी है? टॉनी मॉरिसन ने लिखी है. और ये ट्रिलॉजी है जिसमें पैराडाइज है, और सबसे पहला है इसका बिलाविड वर्क. दूसरा है हमारा इसका जैज़, जहाँ तक
ये करेक्ट है बिल्कुल. आई नो द वर्क. सो दीज 3 आर द ट्रोलॉजी. और लास्ट जो है इसका वो पैराडाइज है, जो कि आया था 1997 में. सो यू मस्ट रिमेंबर दिस. टॉनी मॉरिसन, द फर्स्ट novel was Beloved and then the second one is Jazz. Now let's see the next question. So this is the next question. In which 1929 novel would you read about Frederick Henry and Catherine Berkeley? So here we have actually the characters and we have to tell which is the novel, and then we'll get to know the author as well. So it's a 1929 novel. Actually every year, some years in the history of literature are important because those years were important when the great works were published. So 1929 पढ़ते ही मेरे दिमाग में एक नॉवल आती है. जनरली मेरे दिमाग में 1929 पढ़ने के बाद एक नॉवल आती है. वैसे उस टाइम पे 3-4 हुई थी. तीनों चारों जो हैं वो बहुत फेमस हैं. 2-3 तो बहुत ही फेमस हैं, लेकिन जो 1929 पढ़ते ही मेरे दिमाग में सबसे पहले जो वर्क आता है वो आता है. आप भी गेस करें कौन सा आता है आपके दिमाग में. मुझे बताना कि इनमें से कौन सा आपको लगा सही. और आपके दिमाग में ऐसा होता है कि आपको ईयर सुन के याद आ जाता है कि इस ईयर में ये वाली बुक पब्लिश हुई थी. सो हेयर वी हैव द कैरेक्टर्स फ्रेडरिक हेनरी एंड कैथरीन बर्कले. एंड जो मेरे दिमाग में एक्चुअली आती है मैं वो क्लियरली बताती हूँ. 1929 सुनते ही मेरे दिमाग में आता है फेयरवेल टू आर्म्स. 1929 is Farewell to Arms. Keep this in your mind because this is the right answer. Now let's see what is the right answer according to the. So yes, A Farewell to Arms is the right answer, and it was written by Ernest Hemingway. It's a 1929 novel, A Farewell to Arms, written by Ernest Hemingway. ये एक वॉर नॉवल है. जिनको नहीं पता है, जिनको पढ़ा हुआ है उनको ज़रूर पता होगा. जस्ट इग्नोर माई हैंड राइटिंग हियर. तो वो क्या है, 1929 का वर्क है, फेयरवेल टू आर्म्स, अर्नस्ट हेमिंगवे. एंड ये उनका खुद का अकाउंट है, एक तरह से खुद का उनका पर्सनल लाइफ स्टोरी जो है उन्होंने इसमें ऐड की है. तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन इसमें मैंने डाला है जो कि मे बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत बार ऐसे वाले क्वेश्चंस आते हैं. सो लेट्स सी विच ऑथर यूज द पेन नेम जॉर्ज सैंड. सबको पता है कि एक ऑथर होता है जो उसके 2 नेम होते हैं. सब ऑथर्स के नहीं, लेकिन मोस्टली ऑथर्स के होते थे. और पहले तो बहुत होते थे, अब तो चेंज हो गया है. अब वो अपना नॉर्मल जो नेम होता है वो यूज़ करते हैं. लेकिन पहले क्या होता था, एक पेन नेम अलग हुआ करता था. पेन नेम होता था जिस नाम से वो अपनी बुक लिखते थे. तो पेन नेम होता था हमारा जिससे वो अपनी बुक लिखते थे, और रियल नेम उनका अलग होता था. और स्पेशली ये किसके साथ होता था, जैसे जॉर्ज सैंड है सपोज़, ये मेल नेम है, इट्स अ मेल नेम. तो पहले जो फीमेल होती थी वो फ्री फील नहीं करती थी लिखने के लिए, और कई बार उनको अलाउड भी नहीं किया जाता था कि तुम राइटिंग नहीं कर सकती. तो वो क्या चूज़ करती थी, वो विमेन जो होती थी वो चूज़ करती थी एक मेल पेन नेम यूज़ कर लेती थी, ताकि किसी को पता न चले कि ये जो बुक की राइटर है ये एक फ़ीमेल है. तो जनरली वो क्या करती थी, अपना एक फ़ीमेल नेम के बजाय वो मेल नेम लेती थी, उसके नाम से वो बुक्स लिखा करती थी, सो डैट जो सोसाइटी है वो उनको क्रिटिसाइज़ ना करे और फ्रीडम दे थोड़ी लिखने की. बहुत बार ऐसा हुआ है कि कितनी बुक्स, अक्लेम्ड बुक्स का नाम जो फीमेल थी वो राइटर्स, लेकिन उन्होंने पेन नेम जो थे उनके वो मेल थे. चलो देखते हैं. सो विच ऑथर यूज़ द पेन नेम जॉर्ज सैंड. तो कौन सा ऑथर है जिसका नेम जो है, पेन नेम जो है वो जॉर्ज सैंड है. ऑप्शंस देख लेते हैं. डीन कून्स, जॉन डिक्सन का, अर्ल स्टैनली गार्डनर, अमंटाइन लुसील, अरोर डुपीन. सो दीज आर द 4 ऑप्शंस. चारों
ऑप्शंस शायद किसी को नए भी लग रहे होंगे, बिल्कुल नए लग रहे होंगे, और किसी ने शायद पढ़ भी रखा हो नाम, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है. सो द राइट आंसर इज अमांटिस लुसील Aurora Dupin, and she was a French novelist who was born in 1804. So I hope everyone gets the answer. Amantine Lucille Aurore Dupin. So she's the. So here we can see she is female. Amantine Lucille Aurore Dupin. She was famous female writer, and in the romantic era, actually in romantic era she was very famous. Even she was compared with great writers, and she's a French novelist. Remember this thing, she's a French novelist, and George Sand was her pen name. She chose a male pen name, George Sand, for her. And there is one thing more about Amantine Lucille Aurore Dupin, that she used to wear the male attire. ये क्या करती थी, ये उस टाइम पे होता नहीं होगा अलाउड, अब तो सब तरीके के कपड़े पहने जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे मेल कपड़े नहीं पहन सकती थी औरतें. लेकिन ये जो थी अमांटिन लुसील अरोर डुपिन, जॉर्ज सैंड, ये पहनती थी जो अटायर वो होता था मेल अटायर, पहनती निकलती थी बाहर. तो उसके ऊपर बहुत सारी बातें होती थी कि ये क्या है, बट शी वॉज अ राइटर, शी वॉज एन आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट का तो हमेशा से अपना जो मन करता है वही करते हैं. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these novels was written by American author Margaret Mitchell? So here we have a question where we have the writer, actually author, and we have to choose which one is the right option. So American author है, सबने नेम सुना होगा मार्गरेट का. ऑप्शन: Gone with the Wind, My Fair Lady, Snow White, Wind in the Willows. So the right answer, आई होप सबका राइट आंसर हो गया होगा. चलिए देखते हैं राइट आंसर. सो हियर इज़ द राइट आंसर, गॉन विद द विंड, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1936. सो गॉन विद द विंड इज़ द राइट आंसर. It was written by Margaret Mitchell and it was published in 1936. Remember three things: author, work and publishing date 1936. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विदाउट एनी डिले. नेक्स्ट क्वेश्चन: Which of the following novels was written by American Gothic fiction writer Anne Rice? Gothic fiction सबको पता होगा. Gothic fiction का एक टाइम आया था. Gothic novels हम बोलते हैं उनको. Mysterious novels, horror novels, horror होती हैं स्पेशली ये Gothic जो होती हैं, जिसमें एक जो पूरा प्लॉट होता है नॉवल का वो सारा हॉरिफिक होता है, मतलब डरावना होता है. हॉरर मूवी जैसे होती है ना, ऐसे ये जो नॉवेल्स होती हैं, जो मूवीज़ होती हैं वो इन्हीं के ऊपर बनती हैं. तो अमेरिकन गॉथिक फिक्शन राइटर हैं, फेमस हैं, सबने नाम सुना होगा, एन राइस का. तो ये कौन सी इनमें से नॉवल है जो इन्होंने लिखी है? लेट्स सी द ऑप्शंस: फ्लावर्स इन द एटिक, ट्वाइलाइट, क्वीन ऑफ द डैम, फ्रैंकस्टीन. तो सारे वर्क इम्पॉर्टेंट हैं ये, और नेम तो इनका इम्पॉर्टेंट है, एन राइस का. पता होना चाहिए सबको कि जो वर्क है कौन सा इनका राइट वर्क है. तो आई होप सबको समझ आ गया होगा सही आंसर. जिनको पता होगा उन्होंने क्लिक कर दिया होगा. सो द राइट आंसर इज़ क्वीन ऑफ डैम. क्वीन ऑफ डैम वॉज रिटन बाय एन राइस. जो क्वीन ऑफ डैम है वो किन्होंने लिखा है? एन राइस ने. और ये क्या वर्क है? इसमें 4 चीज़ें क्लियर हो रही हैं. क्वीन ऑफ डैम क्या है? एक गॉथिक फिक्शन है
और हमारा जो क्या कहते हैं एन राइस हैं, उन्होंने ये लिखा है। और इसका पब्लिशिंग ईयर भी देख लेते हैं हम, ये आगे इसकी डिटेल। क्वीन ऑफ डैम्ड 1988 में ये पब्लिश हुई थी। सो क्वीन ऑफ डैम्ड कब आई? 1988 में। और ये क्या है? द नावल इंटरव्यू विद वेम्पायर वॉज ऑल्सो रिटन बाय एन राइस। एक और नावल का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया है, इंटरव्यू विद द वेम्पायर। So let's see the next question. Let's move towards the next question without any delay. Okay. So here we have another important question. Best known for his military and espionage storylines, who wrote the novel The Hunt for the Red October? Name of the novel is The Hunt for the Red October. Best known for his military espionage storylines. जो हंट फॉर द रेड अक्टूबर जो वर्क है हमारा, ये उन्होंने लिखा है, जो कि अपनी मिलिट्री वर्क्स और स्टोरी लाइन्स के लिए फेमस हैं। तो हम 4 ऑप्शन से देख लेते हैं। सो दीज आर द 4 ऑप्शंस। अब देखते हैं इसका राइट आंसर। सो टॉम क्लैंसी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस। टॉम क्लैंसी। आगे इसकी आंसर की डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। सो रिमेंबर द नेम, नोट कर सकते हैं क्वेश्चंस को आप, ताकि इजी हो जाए। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर वुड यू फाइंड कैरेक्टर आसलन? कुछ जो कैरेक्टर्स होते हैं लिटरेचर में, वो होते हैं बहुत फेमस, जिनका आप नाम सुनते ही बता सकते हैं। जैसे आप बता सकते हैं कि किंग डंकन किस में आया था, या फिर हमारा क्लॉडियस किस में है, या कोई भी नेम। असलान जो है वो भी हमें पता चल जाएगा, जो फेमस वर्क है। वाइफ ऑफ बाथ किस में आता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स होते हैं, और उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो हमें याद रह जाते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है, वेयर विड यू फाइंड द कैरेक्टर असलान? एंड हेयर वी हैव 4 ऑप्शंस, ब्राइडेन, वंडरलैंड, नानिया, पनम। सो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें। 4 ऑप्शन हमारे सामने हमारे, आप रीड करें, देखें, अपने दिमाग से पता लगाएं कि क्या हो सकता है इसका आंसर। तो आई होप आपने आंसर समझ लिया होगा। देखें आंसर, चलिए आंसर देखते हैं इसका। सो द आंसर इज़ नानिया। नानिया जो है, क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया जो है हमारी, किसने लिखी है? C.S. लेवाइस ने, और 1950 में ये लिखा गया है। नानिया 1950 से शुरू हुआ था एक्चुअली। ये इसकी सीरीज़ आती रहती थी, एक के बाद एक एक करके पब्लिश होती थी, लेकिन शुरुआत जो हुई थी इसकी वो 1950 में हुई थी। द क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया वॉज रिटन बाय C.S. लेवाइस। सो नार्निया इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्क जो है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इसका क्वेश्चन आता रहता है। हु रॉट द फेमस वर्क 20,000 लीग्स अंडर द सीज? यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम, 20,000 लीग्स अंडर द सीज। जो ये वर्क है, इसके जो राइटर हैं, ये ज़्यादातर इन्हीं ऐसे ही वर्क लिखते हैं, सी अराउंड, वर्ल्ड के बारे में, सी के बारे में। इनके नेम्स भी आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। C.S. लेवाइस, जूल्स वर्नी, J.R.R. टोल्किन, रे ब्रैडबरी। सो हेयर वी हैव 4 ऑप्शंस। आई होप 4 ऑप्शंस ही आपको पता होंगे राइटर्स, क्योंकि सारे फेमस हैं ये। तो देखें इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है जूल्स वर्नी, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं ये। और 20,000 लीग्स अंडर द सीज जो है 1869 में आया था सीरियल फॉर्म में, लेकिन वो इंग्लिश में जब पब्लिश हुआ था तो वो था उनका टाइम ईयर 1872। और इनके वर्क्स हैं, ये मैंने 3 मेंशन कर दिए हैं। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, द मिस्टीरियस आइलैंड,
So most of his works are like this. So you should remember 20,000 Leagues Under the Seas इंग्लिश में 1872 में हुए थे पब्लिश, और राइटर जो है इसके जूल्स वर्ने, फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट. सो now let's move towards the last question of today's video. Who wrote the work Catch-22? आई होप सबने सुना होगा Catch-22 का नाम. Catch-22 देखते हैं ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है हमारा विलियम गोल्डिंग, जोसेफ कॉर्नाड, जॉर्ज ओवेल, जोसेफ हेलर. तो ये हमारे 4 ऑप्शंस हैं. मैं एक बार इसको मिनिमाइज़ कर देती हूँ. विलियम गोल्डिंग, जोसेफ कॉर्नाड, जॉर्ज ओवेल, जोसेफ हेलर. So we have 4 things. Catch-22. Let's see the answer. So the answer is Joseph Heller. He was an American author. And Catch-22 जो है वो सटायरिकल वॉर नॉवल है जो कि कब पब्लिश हुई थी 1961 में. तो ये पूरा इसमें इंफॉर्मेशन आ रहा है सारा इसका. जोसेफ हेलर जो है अमेरिकन ऑथर हैं. किसके? Catch-22 इन्होंने लिखी थी. एक सटायरिकल वॉर नॉवल है और 1861 में जो है वो पब्लिश हुई थी. सो आई होप आपने वीडियो एंजॉय करी होगी और 10 चीज़ें नई सीखी होंगी लिटरेचर के बारे में. 10 नए नाम पढ़े होंगे, 10 नए वर्क पढ़े होंगे. आई होप. एंड प्लीज़ मेक श्योर इफ़ यू लाइक द वीडियो गिव इट अ थम्स अप एंड do subscribe to my channel because I post videos on language and literature. And yes, thank you for watching.